বিশেষকৈ অসমত বৰ্তমান সময়ত এটা বিষয়ক লৈ চৰ্চা চলি আছে আৰু সেই বিষয়টো হৈছে যে এবছৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে 1 লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰিব। কেৱল হিমানেই নহয়, অৰবিন্দ কেজৰিৱালে শেহতীয়াকৈ দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছক লৈ কৰা মন্তব্যক লৈও ৰাজ্যত বিতৰ্ক চলি আছে। কিন্তু এনেবিলাক বিতৰ্কৰ মাজতেই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা আজি কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে 1 লাখ চাকৰি নহয়, দিল্লী চৰকাৰে 5 বছৰত 20 লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰিব। ফাৰ্ষ্ট টাইমত এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ, আগন্তুক 5 বছৰত 20 লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দিল্লী চৰকাৰে। বাজেটত এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। তাৰ লগতে কেৱল সিমানেই নহয়, মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা জনতাক সকাহ দিয়াৰ বাবে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। দিল্লীত চৰকাৰী শিক্ষা সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া, অৰ্থাৎ চৰকাৰী শিক্ষাৰ বাবে এটকাও দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। দ্বিতীয়তে দিল্লীত স্বাস্থ্য সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া। মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ বাবে দিল্লী চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ধনীয়েই হওক বা দৰিদ্ৰই হওক, বিনামূলীয়াকৈ দিল্লীত স্বাস্থ্য সেৱা লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হয়। দিল্লী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো বৃহৎ সিদ্ধান্ত হৈছে দিল্লীৰ 73% জনতাই বিনামূলীয়া বিজুলী লাভ কৰে। আৰু অসমত বিজুলীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে, প্ৰতি ইউনিটত মূল্য বঢ়াইছে। সেই সময়তে 73% দিল্লীৰ জনতাক বিনামূলীয়া বিজুলী, 24 ঘণ্টাই বিজুলী। দিল্লীবাসীয়ে পানীও, খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য যি পানী যোগান ধৰে সেয়াও বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰে। আৰু দিল্লীত অতি শীঘ্ৰে 24 ঘণ্টাই পানী উপলব্ধ কৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চৰকাৰে। আম আদমীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এই কথা ঘোষণা কৰিছে। মহিলাসকলৰ বাবে দিল্লীত বিনামূলীয়া পৰিবহণ ব্যৱস্থা, এইসমূহ সুবিধাৰ জৰিয়তে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়ত যাতে জনতাক সকাহ দিব পৰা যায়। প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে, তাৰ বাবে এই পাঁচোটা ক্ষেত্ৰত দিল্লী চৰকাৰে বিনামূলীয়া ব্যৱস্থা কৰিছে। কেৱল বিনামূলীয়া ব্যৱস্থা কৰাই নহয়, আগন্তুক 5 বছৰত 20 লাখ চাকৰি দিব, অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে 4 লাখকৈ চাকৰি প্ৰদান কৰিব। ৰাজ্যত বৰ্তমান সময়ত এবছৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে 1 লাখ চাকৰি দিব পাৰিবনে নোৱাৰে, তাক লৈ বিতৰ্ক চলি আছে, চৰ্চা চলি আছে, বিৰোধীৰ মাজত আলোচনা হৈছে। কাশ্মীৰ ফাইলছক লৈ কেজৰিৱালক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমালোচনাও কৰিছে। কিন্তু এনেকুৱা কথাত গুৰুত্ব নিদি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে যে আগন্তুক 5 বছৰত আমি 20 লাখ চাকৰি দিম। দিল্লীত শিক্ষা বিনামূলীয়া, দিল্লীত স্বাস্থ্য বিনামূলীয়া, বিদ্যুৎ 73% লোকে বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ পায়। কিন্তু অসমত বৰ্তমান সময়ত বিদ্যুতৰ যি প্ৰতি ইউনিটত মূল্য বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, 1 এপ্ৰিলৰ পৰা অধিক মূল্য দিব লাগিব। পৰিবহণ ব্যৱস্থা মহিলাসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া কৰি দিছে, পানী যোগান বিনামূলীয়া কৰি দিছে আৰু কৈছে যে 24 ঘণ্টাই পানী যোগান ধৰা হ'ব। আৰু এইদৰে সমগ্ৰ দেশতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এটা নতুন ট্ৰেণ্ডৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমাৰ লগত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আছে, মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। आज जो बजट पेश किया गया, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। ये कोई चुनावी वादा नहीं है, आज कोई चुनावी सभा नहीं थी। आज विधानसभा के अंदर बजट रखा गया और बजट में 20 लाख रोजगार तैयार करने का एक पूरा खाका देश के सामने रखा गया। 5 चीजें बहुत बड़ी हैं: शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री। इन 5 चीज़ों से दिल्ली के एक आम आदमी की ज़िंदगी को थोड़ा सा सहारा दिल्ली सरकार देने का काम करती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है महंगाई की। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली के लोगों को, केवल और केवल दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं और वो जारी रहेंगे। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बेहद शानदार हो गए हैं, शिक्षा फ्री है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी शिक्षा फ्री है। ढेरों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। ढेरों लोग, इस साल 4.25 लाख लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अगर आपके घर में 2 भी बच्चे हैं पढ़ने वाले और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तो एक बच्चे की फ़ीस आई जाती है। तो 10,000 रुपये पर मंथ एक आम आदमी का इतनी महंगाई के ज़माने में बच गया, स्कूल का ही बच गया। बहुत बड़ी बात है। हेल्थ के क्षेत्र में दिल्ली अकेला पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है
जहां पे हर आदमी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका पूरा इलाज मुफ्त है। अगर आपको थोड़ा सा बुखार हुआ, मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आपको डॉक्टर दवाई देगा, डॉक्टर भी फ्री, दवाइयाँ भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, सब कुछ फ्री। अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई जिसमें 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का खर्चा आता है, आप जीटीबी जाइए, एलएनजेपी जाइए, जीबी पंत जाइए, दिल्ली सरकार के 38 बड़े बड़े हॉस्पिटल है, किसी में भी जाइए, सारा इलाज फ्री है। सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी, आपसे पूछा नहीं जाएगा आप अमीर हो कि गरीब हो, बीपीएल के कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई टेस्ट कराना है, एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है, जो भी कराना है, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में फ्री है। हॉस्पिटल में टेस्ट ना हो पाए, आप प्राइवेट में करा लो, सारा रिम्बर्स किया जाता है। इस तरह की हेल्थ सिक्योरिटी जो है, मुझे नहीं लगता देश तो छोड़ो, दुनिया में कहीं इस किस्म की हेल्थ सिक्योरिटी कहीं किसी भी राज्य के सिटीजन्स को दी गई है। ये अब जैसे आज वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को गरीबी में धकेल देता है। कोई घर में बीमार हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, सब कुछ बेचना पड़ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो दिल्ली के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, शिक्षा की सिक्योरिटी, हेल्थ की सिक्योरिटी। तो लोगों को महंगाई से और चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो तो हम कर रहे हैं। तीसरी, बिजली। आज दिल्ली के 73% जनता को फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। बहुत बड़ी बात है। मैं कई राज्यों से होके आया हूँ, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं हर महीने। यहाँ पे लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं। महंगाई के ज़माने में ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। पानी फ्री मिल रहा है लोगों को। दूसरे राज्यों में आप चले जाइए, दूसरे राज्य क्या, दिल्ली के अंदर भी हमारी सरकार बनने के पहले मैं जब घूमा करता था, लोगों के 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये के महीने के बिल आया करते थे। अब लोगों के 0 बिल आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था हो रही है। अब 24 घंटे पानी करेंगे, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। केवल पानी फ्री नहीं, पानी नहीं आए तो फ्री पानी का क्या फ़ायदा है। तो पानी भी 24 घंटे आया करेगा, इसकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट। ये 5 चीज़ें बहुत बड़ी हैं। शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री। इन 5 चीज़ों से दिल्ली के एक आम आदमी की ज़िंदगी को थोड़ा सा सहारा दिल्ली सरकार देने का काम करती है। हमारा मानना है कि आज एक आम आदमी के सामने इस देश में 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, रोज़गार और महंगाई। और इसको लेके अभी जैसे पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार ने सरकार बनते ही 25,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, जिसका 1 महीने के बाद जिनकी भर्ती होने वाली है। 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया पंजाब में। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है, अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बहुत ब्रॉडली देखूं, तो इन 2 समस्याओं का समाधान, रोज़गार और महंगाई, इन 2 समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर, इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ, मुझे नहीं लगता रोज़गार पैदा करने के लिए, मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने प्रयास किया है जो आज इस बजट के ज़रिए किया गया है। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोज़गार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए। इनमें 1,78,000 रोज़गार सरकारी सेक्टर में थे और लगभग 10 लाख रोज़गार प्राइवेट सेक्टर में थे। 12 लाख रोज़गार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तैयार किए। आज जो बजट पेश किया गया है, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोज़गार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले 5 साल में 20 लाख रोज़गार देंगे। ये कोई चुनावी वादा नहीं है, आज कोई चुनावी सभा नहीं थी। आज विधानसभा के अंदर बजट रखा गया और बजट में 20 लाख रोज़गार तैयार करने का एक पूरा खाका देश के सामने रखा गया।
ये बहुत ही बोल्ड बजट है, बहुत ही इनोवेटिव बजट है और इसके लिए मैं मनीष सिसोदिया जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यही आज लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना की वजह से बहुत सारे जॉब्स चले गए, हर घर के अंदर तकलीफ़ है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। आज जो बजट पे